Good morning everyone. Students, today we will start with a very important topic of the class 11th biomolecules, that is enzyme. This is very important topic for your competitive exams. Okay, so enzymes. The term enzyme was given by the Kuhn in 1878. Now what are enzymes? Enzymes are biocatalysts. What are enzymes? Enzymes are biocatalyst. Biocatalyst means they catalyze or the speeds up the rate of biochemical reaction. Fastens or speeds up rate of biochemical reaction. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसके रेट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? एंजाइम्स दैट आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट. ओके, दीज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. दे हैव स्पेसिफिसिटी, मीन्स these एंजाइम वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. ये किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे वर्क करेंगे. हर सबस्ट्रेट के लिए एक सिंगल एंजाइम नहीं हो सकता. क्लियर. नाउ नेचर की बच्चे अगर बात करें तो प्रोटीन इन नेचर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर except ribozyme. Ribozyme shows catalytic activity is just like the other enzyme and it is made up of RNA and protein. Means they have RNA also. So all the enzymes are purely protein in nature. They are made up of protein, but we cannot say, इसका उल्टा हम नहीं कह सकते all proteins are not enzyme. All enzymes are protein, but all proteins are not enzyme because there are proteins building for the building block also, body building, but all proteins cannot be enzyme, but all enzymes are protein except only the one, that is ribozyme. Clear? So we are talking about the enzymes that are biocatalyst. See how they catalyze the reaction. Carbon dioxide with water forms कार्बोनिक एसिड इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है बच्चे? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स reacts with water molecules and form carbonic acid. If in this reaction there is no enzyme, अगर यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं है तो in this reaction 200 molecules of carbonic acid are produced in 1 hour. का कितने कार्बोनिक एसिड बनेंगे 1 hour में? Only 200 molecules. If here enzyme that work is carbonic anhydrase, it is carbonic anhydrase enzyme is there present, means in the presence of carbonic anhydrase enzyme this reaction speeds up and produces 6 lakh molecules. Clear? And बच्चे कोई भी एंजाइम जब किसी भी कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है तो उसमें खुद में कोई चेंज नहीं होगा. दीज एंजाइम वी गेट एज सच आफ्टर द रिएक्शन. दे डू नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन. कोई भी एंजाइम कभी भी अपने आप को रिएक्शन में इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करा. दे ओनली स्पीड्स अप फास्टर अप द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दे आर रिमेन एज सच. आपको रिएक्शन के बाद एंजाइम वैसे का वैसे मिलेगा, उसमें कोई भी चेंज, कोई केमिकल चेंज, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो बच्चे अभी हमने यहाँ एक एंजाइम की बात की, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस. दिस इज रिगार्डेड एज फास्टेस्ट एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेस को हम फास्टेस्ट एंजाइम कह रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. आप इसके नेम को लर्न करेंगे. कार्बोनिक एनहाइड्रेस दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज अ वेरी फास्टेस्ट एंजाइम. इसके बाद 2 प्रो एंजाइम्स और हैं जो आपको लर्न करने हैं. वन एज रुबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
This is enzyme found in a plants, okay, and this is most abundant enzyme. सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? Ribisco enzyme. Clear? So Ribisco is a most abundant enzyme, and another is collagen. Collagen is abundant, most abundant enzyme in animals. Animal tissue में जो सबसे ज़्यादा enzyme मिलेगा that is collagen. Okay? So collagen is an enzyme that is found in animal tissue, and Ribisco is the most abundant. This is very important question. Full form of Ribisco: ribulose bisphosphate carboxylase, and this is the most abundant enzyme in a living system. Okay? Now let's move to the classification of an enzymes. सो क्लासिफिकेशन करेंगे अब हम एंजाइम्स की. When we are doing the classification of enzyme, these enzymes are classified into the six different categories. First is oxidoreductase. नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेज. एक सब्सटेंस यहाँ पे सबस्ट्रेट, यहाँ पे जब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट. एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हेन अकर साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज. ओके, सी हियर मैं इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. हियर वन सबस्ट्रेट is there and another is S dash. One substrate is S and another is S dash. Now what happens? This becomes like this. Means in a substrate 1 oxygen is added and in substrate 2 hydrogen is added. Means oxidation and reduction occur simultaneously here. So it is known as oxidoreductase enzyme. This is a first class of enzyme. Then transferase. Okay, transferase name से पता चल रहा है बच्चे, transfer of functional group. Here is one substrate with a functional group attached with a bond. This is a functional group and this is another substrate. Now the functional group separates from one substrate S and move to the another. Transfer of this functional group from substrate S to the S dash is known as transferase enzyme. When such type of activities occur by the enzyme, that is known as transferase type of enzyme. Okay? Hydrolases. Hydrolase is very clear. Breaks the bond and or forms the bond and leads to the release of water molecule. जब भी किसी कैटालिटिक रिएक्शन में रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा with bond formation, then it is called hydrolase enzyme. एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी किए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था, ठीक है. पेप्टाइड बॉन्ड बनाया प्रोटीन्स में लास्ट क्लास में. सो दीज आर ऑन द रिएक्शन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोलेसिस. ओके, नाउ द फोर्थ लाइएजेस. लाइएजेस में बच्चे क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ हाइड्रोलेस एनी बॉन्ड फॉर्मेशन अकर बट नो रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन अकर. ओके, but no release of hydrolysis. Hydrolases, this is a special class of lases where the hydrogen, मतलब water molecules is released. Where if water is not released, any other substance is released, then it is liases. Okay, bond formation occur. Suppose here this substrate is there. This substrate has X and this substrate has Y molecule attached to it. Okay. Now after the bond for breakdown or formation, this S substrate now has X
as well as Y, and this is again another substrate. So this is the lyases type of enzyme. Clear? Now the next one is very important and very easy, isomerases. ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करना है तो बच्चे जो एंजाइम होगा दैट इज आइसोमेरेज एंजाइम, बिकॉज दीज आर आइसोमर्स. तो किसी सब्सटेंस को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे दैट इज आइसोमेरेज एंजाइम. एंड द लास्ट वन इज लाइगेज. लाइगेज मीन्स टू ज्वाइन. किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कराने के लिए जो बॉन्ड लगेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज लाइगेज एंजाइम्स दैट जॉइंस द टू डिफरेंट बॉन्ड्स. ओके, आपको डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये एंजाइम यूज होता है, वहाँ पे आपको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी में ये एंजाइम बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. लाइगेज, टू डिफरेंट सोर्स ऑफ डीएनए को हमें ज्वाइन करना है तो वी विल यूज लाइगेज एंजाइम. This is a classification of enzyme. Enzymes are classified into the 6 different categories: oxidoreductase, transferase, hydrolases, lases, lyases, isomerases, and ligase. Okay, but you need to learn these enzyme in this sequence only. You can learn by a trick: OTHLIL. O means oxidoreductase, T transferase, hydrolase, lyases, isomerases, ligase. You need to learn these enzyme in this sequence only. Clear? Now let's move to the mechanism of enzyme action. So now we will talk about the mechanism of enzyme action. कि हाउ दीज एंजाइम वर्क. हमने क्या पढ़ा बच्चे? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ एनी बायोकेमिकल रिएक्शन. किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम एंजाइम्स को यूज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ हाउ दीज एंजाइम्स वर्क, किस तरह से ये एंजाइम वर्क कर रहे हैं. सो हियर इज द कंसेप्ट. जी देखो, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ. ग्राफ में मैं यहाँ बता रही हूँ कि दिस इज एन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, this is an energy of substrate, and this is an energy of product. It is very clear from here, from this graph, कि मैं जब एनर्जी को बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई एक रिएक्शन होगी, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट. सो जब सबस्ट्रेट की एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो रिएक्शन बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि एक हाई एनर्जी से हमें लो एनर्जी मॉलिक्यूल तक मूव करना है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट नो बच्चे, हेयर इज वन ट्रांजिशन स्टेट ऑल्सो. यहाँ पे क्या हो रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले उसकी ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. मीन्स दीज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स नीड टू इंक्रीज देयर एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, सो दैट स्लोली देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड इट रीचेज अप टू द ट्रांजिशन स्टेट, एंड देन दे मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जहाँ पे कोई भी एंजाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा है. सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन स्टेट से क्रॉस करना पड़ेगा. क्लियर? एंड द एनर्जी टू कैरी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द ट्रांजिशन स्टेट. सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मीन्स द एनर्जी बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन. ऑब्वियसली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप देखो बच्चे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को कवर करना पड़ा है, मतलब उसे एक्टिवेट होना पड़ रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसी रिएक्शन में बच्चे आप देखोगे वट यू विल सी हियर कि मैंने कैटलिस्ट यूज किया इन दिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए. आई यूज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट, व्हाट द कैटलिस्ट विल डू, इस ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा नीचे कर देगा. नाउ दिस इज अ न्यू ट्रांजिशन स्टेट. तो अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ
ऐसे मूव करना पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट को कम कर दिया, मीन्स उसने क्या किया, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, सो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अभी हमें सिर्फ ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सो in a what is the mechanism of enzyme action, how the enzymes work? So what the enzymes do, enzymes lowers the activation energy, okay, it energy, and here AC, this is called activation energy. So enzymes lowers the activation energy and fastens the reaction. कौन सी reaction? Biochemical. Always these catalyst or enzymes that are biocatalyst, तो ये biochemical reaction में ही use होंगे. Fastens the rate of biochemical reaction by lowering down the activation energy. Clear? Now mode of enzyme action. Now we will move to the mode of enzyme action. Next is a very again important topic. All the parts of this enzyme topic are very important. These are very important for your competitive exams as well as the school based exams, that is board exams. Mode of enzyme action. अब हमें mode of enzyme की how this work, ठीक है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, बट इज देयर एनी रिएक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम? एंजाइम हमने बोला कि वो आफ्टर द रिएक्शन एज सच वापस आ जाता है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दे केम एज सच आफ्टर द रिएक्शन, दे डू नॉट हैव एनी चेंज। एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ सी, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मैकेनिज्म। वी विल टॉक अबाउट लॉक एंड की मैकेनिज्म गिवन बाय Fisher in 1894. ओके, लॉक एंड की मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे। अब इसको देखेंगे लॉक एंड की मैकेनिज्म में होता क्या है कि देयर इज वन एंजाइम एंड वन सबस्ट्रेट। फर्स्टली दिस एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका, and this enzyme substrate complex changes into enzyme product complex, and ultimately enzyme is as such and product is formed. Okay, now I will show you diagrammatically कि ये कैसे हो रहा है. So which is see, this is a enzyme. ये एक एंजाइम है. ये एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है. एंजाइम्स में स्पेसिफिसिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को ही बाइंड करवाएंगे, हर किसी सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कराएं. दिस एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर एंड दिस इज कॉल्ड, this is active site of enzyme, the site where substrate bind. A site in an enzyme where substrate binds is called active site. जहाँ पे आके substrate bind करेगा वो एक्टिव साइट होगी. ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री. जस्ट लाइक लॉक एंड की, एक लॉक में एक स्पेसिफिक की हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. और की शेप क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट टू द शेप ऑफ द लॉक, सो दैट इट कैन फिट इनसाइड. सेम इज देयर. यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा बच्चे उसकी शेप ये होगी, उसकी आउटर शेप जो है वो ये होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो यहाँ आके बाइंड करेगा. नाउ हियर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म and it fit in the active site में bind हो गया. This is enzyme substrate complex. Now this enzyme do the changes and the substrate changes into the product. Now the substrate changes to the product. Here it breaks down into two. And now enzyme is as such, after the reaction we will get enzyme as such and the product is formed.
ठीक है बच्चे, अगर हम इसको शेप के बेसिस पे देख रहे हैं, तो दिस इज लॉक एंड की मैकेनिज्म. एंजाइम्स बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड दीज एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट इज स्पेसिफिक बाइंडिंग. स्पेसिफिक बाइंडिंग मीन्स देखो कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाला, जैसे कि हमारे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होगी, उसी तरह हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, फॉर्म्स enzyme substrate complex, then product is formed, then enzyme. Once the product is formed, enzyme separate itself, और हम उसमें देखेंगे उसमें enzyme में कोई भी change नहीं आएगा. Clear? This is the first mode of enzyme action known as lock and key mechanism given by Fisher in 1894. Now we will move to the second induced fit mechanism given by Koshland. इट इज क्वाइट सिमिलर, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर इज ओनली वन लिटिल डिफरेंस. क्या है बच्चे? इंड्यूस फिट मैकेनिज्म गिवन बाय कॉशलैंड in 1959. ओके, इन 1959 दिया था. और इसने क्या कहा कि एंजाइम में एक साइट नहीं होगी, दो साइट होंगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड, इन एंजाइम्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक टू नेचर दे फॉलो द लॉक एंड की मैकेनिज्म, बट इंस्टेड ऑफ one site they have two sites. This is called active site or called catalytic site. Active site is also known as catalytic site. Okay, and one more site is there, that is called Potrescic site. और क्या कह रहा है कि यहाँ पे वही स्पेसिफिक तरह का एंजाइम आके बाइंड करेगा. ठीक, बट बटरेसिक ग्रुप क्या करेगा? हेल्प्स इन fitting of enzyme to substrate. Means यहां पे ये बटरेसिक ग्रुप कुछ कॉन्फर्मेशन चेंजेस लाएगा, सो दैट इट डिड सम कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, मॉडिफिकेशन करेगा, सो दैट सबस्ट्रेट गेट इंड्यूस फिट इनसाइड दिस. जब ये इसके अंदर प्रॉपरली फिट आएगा तभी फिट हो जाएगा बटरेसिक ग्रुप की हेल्प से. देन ओनली कैटालिटिक साइट वर्क्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट. सम चेंजेस आर अकरिंग अगेन इन द कैटालिटिक साइट. कैटालिटिक साइट पे ही जाके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है. बट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंजाइम नीड्स टू फिट इटसेल्फ विद अ सबस्ट्रेट. उसको अपने साथ फिट कराना है उस सबस्ट्रेट को, और उस फिटिंग के लिए उसको क्या चाहिए? सो कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस. सपोज दिस इज अ एंजाइम एंड हेयर विल द substrate binds. Okay, so when substrate act, it needs to do some conformational changes so that it is tightly bound to it, fit inside it, and then only the catalytic side do the work and then product is formed. Okay, so this is induced fit mechanism given by the Koshland. This is about the mode of enzyme action. Now the nomenclature of enzyme. हम किसी भी एंजाइम के नेम को कैसे पहचानते हैं, कैसे नेम रखा जाता है? ठीक है, सो देयर आर 3 पार्ट्स. नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं बच्चे. नॉमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल. बहुत सारे एंजाइम्स हैं आपके, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, दैट डू नॉट फॉलोज दिस नॉमेनक्लेचर बिकॉज इस नॉमेनक्लेचर के डिफाइन होने से पहले वो नेम्स रख दिए गए थे और आज भी वही नेम फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा जो अब न्यू रूल ऑफ नेमिंग है उसमें क्या होगा? एंजाइम नेम एंड विथ एस. ओके, इट एंड विथ एस. कोई भी एंजाइम होगा आपको उसके लास्ट में एज मिलेगा. यहां मैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन को एक्सेप्ट करके चल रही हूं बच्चे, बिकॉज ये नॉमेनक्लेचर आने से पहले, इसके रूल्स डिफाइन होने से पहले ही उसके नेम्स थे और उनको चेंज नहीं किया गया. रेस्ट अदर्स आर चेंज, बट वो दो एंजाइम ऐसे हैं जिनको अभी भी हम पुराने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, ओल्ड नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं. ओके, एंड देन वन पार्ट इज देयर सबस्ट्रेट. वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, एंड क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर करवा रहे हैं किसी चीज का, या फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, आइसोमराइज करा रहे हैं। तो इस तरह से देखो बच्चे, एक एंजाइम का नेम लिख रही हूं मैं, सक्सिनिक हाइड्रोलेस। ओके, सो हियर लास्ट इट एंड्स विद द ला इज, एंड हाइड्रोलेस मीन्स दे आर कॉजिंग हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या वर्क कर रहा है, किसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा है, सक्सिनिक एसिड की। दैट्स वाई सक्सिनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाएगा ये एंजाइम है। एज मीन्स दिस इज एन एंजाइम। ओके, अभी हमने लिखा था रुबिस्को। ओके, रिबिस्को लिखा था, यहाँ पे देखो रिबिस्को, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं इसका पूरा नाम लिख रही हूं तो ये क्या है, राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। It is ribulose bisphosphate carboxylase. Okay, so the substrate on which it is working is ribulose bisphosphate. क्या करवा रहा है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन means addition of carbon dioxide. Carboxylase is for the to specify it कि ये एक एंजाइम होगा। क्लियर बच्चे? सो दिस इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि किसी भी एंजाइम को कैसे नेम दिया जाता है। ठीक है, और बच्चे अब क्लासिफिकेशन एक तरह से और करनी है हमें। बेसिकली हमें पढ़ना है कि क्या सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने। यस, ऑल एंजाइम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज सिंपल एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम होंगे बच्चे, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। द सिंपल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, and there are conjugated enzymes also. conjugated enzymes भी होंगे कुछ। जो conjugated enzymes होंगे ना बच्चे, उसमें प्रोटीन के साथ, this is a protein part of an enzyme, plus there is some non-protein part. In conjugated enzymes, the enzyme has the main part is called protein part, and some non-protein part is also found in it, and that non-protein part is present, and this protein part is called apoenzyme. Okay, and this non-protein part is called cofactors. So what are cofactors? In a conjugated protein, the non-proteinaceous part is known as cofactors. Now these cofactors can be of any type. It can be called prosthetic group or coenzyme and metal ion. Metal ion means sodium ion metal, potassium metal, सोडियम Na पॉजिटिव, Ka पॉजिटिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी लिविंग सिस्टम में मिल रहे हैं कोई भी मेटल हो सकता है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप? एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है बच्चे, अटैच्ड टाइटली, प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली अटैच्ड पार्ट इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इस प्रोस्थेटिक ग्रुप, मींस वो इजीली सेपरेट नहीं होगा। और जो कोएंजाइम है बच्चे, दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच्ड लूजली। ये पार्ट क्या होगा, लूजली अटैच है, तो इसीलिए हम इस कोएंजाइम में से, मतलब सच टाइप ऑफ एंजाइम्स जिसमें कोएंजाइम कोफैक्टर है, तो हम उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको एसिटिक एसिड बनाने में बहुत इजीली हो जाएगा, हम इस कोएंजाइम पार्ट को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और जो मेटल आयंस होंगे, यू नो दीज आर इनऑर्गेनिक पार्ट। जब इनऑर्गेनिक पार्ट अटैच होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, मेटल आयंस की फॉर्म में अटैच होगा। ठीक है, सो दीज आर द कोफैक्टर। द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स, एंड दीज कोफैक्टर्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए
जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से क्या फर्क पड़ेगा. ओके, सो बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जब हम बात कर रहे हैं, सो सी हियर, दिस इज अ ग्राफ. Once we increase the concentration of substrate, the rate of reaction, enzyme reaction increase होगा. जैसे जैसे हम substrate की concentration बढ़ा रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आके वो वहीं रुक जाएगी, बिकॉज एंजाइम की भी तो कुछ कंसंट्रेशन फिक्स है, उससे ज्यादा एंजाइम वर्क नहीं कर सकता. ठीक है, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. टू एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टू साइंटिस्ट माइकल मेंटल gave an equation. क्या इक्वेशन दी उन्होंने कि वेलोसिटी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू के इंटू एस. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, प्लस के एम माइकल मेंटन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू लर्न करनी होती है, एंड देन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. मींस किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा. सेकेंड इज टेम्परेचर. What is the effect of temperature? So बच्चे when we are talking about temperature, कोई भी rate of reaction temperature increase होने पे increase होगी, but up to the optimum temperature. That optimum temperature is body temperature, normal body temperature. After that it starts decreasing, और उसका rate क्या रहता है? After every increase or decrease in 10 degree, हम 10 degree temperature, यहाँ पे हम degree increase की बात करेंगे और यहाँ decrease. If we are increasing or decreasing the 10 degree temperature, it either doubles, यहाँ rate of reaction every 10 degree rise में double होगा, और यहाँ आके it become half. Means effect a 10 degree rise or decrease, increase or decrease in temperature either doubles the rate of reaction or half the rate of reaction. Okay, same is for the pH. pH की भी बात करें बच्चे तो फर्स्टली it increases with increase in pH. The enzyme activity increases with increase in pH up to the optimum, जहाँ पे वो best results देगा. This is called optimum, not maximum. Optimum means where the rate of reaction is highest, maximum इससे ज़्यादा efficiency enzyme की नहीं हो सकती, and after that it start decreasing. Okay, this is the factors affecting. Now the last topic, that is enzyme inhibition. क्या कोई ऐसी चीज भी है जो एंजाइम को इनहिबिट करेगी? सो एंजाइम इनहिबिशन. सो बच्चे देखो, देयर इज टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन इन एंजाइम्स. एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस भी कर सकता है, कोई इफेक्ट कर सकता है. फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनदर इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास क्या था, ये एंजाइम था दैट इज वेरी स्पेसिफिक. ठीक है बच्चे, वो क्या कर रहा था, हमारे इस यहां पे आके बाइंड, दिस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा था. ओके, नाउ आई हैव अ सबस्ट्रेट, कोई ऐसा केमिकल है जो कि सेम है शेप में, बट द केमिकल नेचर इज डिफरेंट. उसका जो शेप है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, इस सबस्ट्रेट से बिल्कुल सेम है, बट केमिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है. नाउ दिस सबस्ट्रेट हेयर कैन बाइंड. अब आप कहोगे ये भी तो बाइंड हो सकता है, बट देयर इज अ कंपटीशन इन बिटवीन, कि जहां पहले 100% एफिशिएंसी आ रही थी एंजाइम एक्टिविटी की, अब 10 टाइम्स में से 6 टाइम्स अगर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो 4 टाइम्स ये सबस्ट्रेट इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है. इसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर. और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बिकॉज इसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सेम है हमारे सबस्ट्रेट की तरह, बट केमिकल नेचर डिफरेंट. तो जिसकी वजह से अगर ये बाइंड करेगा तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ओके, नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं.
यहाँ देखो बच्चे, वी हैव वन एंजाइम दैट हैज दिस एक्टिव साइट, इसके अलावा इसके पास एक और एक्टिव साइट भी है, दिस, इट हैज मोर देन वन एक्टिव साइट, एंड नाउ दिस इज आवर सबस्ट्रेट जो कि यहाँ बाइंड करना है, एंड दिस सबस्ट्रेट ऑल्सो, ये शेप का भी सबस्ट्रेट आ गया। अब क्या होगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड करेगा और इंड्यूस फिट मैकेनिज्म को अगर फॉलो करता है तो लीड्स टू सम कॉन्फर्मेशनल चेंजेस, जिसकी वजह से ये साइट इनएक्टिव हो जाएगी। बट अगर ये सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड कर जाता है, ठीक है, एंड देन अगेन ये भी अपना कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा ड्यू टू इंड्यूस फिट, इसकी कॉन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। तो एक टाइम पे एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, इनहिबिशन होगा। जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन बिटवीन टू, दे हैव डिफरेंट एक्टिव साइट्स on a same enzyme, that's why they compete with each other at different sites, then it is known as non-competitive inhibition. This is all about the enzymes. This is very important topic, बच्चे इसे अच्छे से करो, read the topic from your NCERT book and learn it very well. Thank you so much.